Hello students, how are you? Today in this video we will do the phrases and clauses. Okay, so let me clear first the phrases, definition and the clauses. तो चलिए start करते हैं phrases और clauses को और सबसे पहले समझते हैं उसकी definition को. Now see the definition of phrase. So what do you mean by the phrase? A phrase is a group of words that does not contain a subject or a verb. It does not express a complete thought. Phrase क्या होते हैं? Phrase वह group of words होते हैं जिसमें subject और verb नहीं होता. It does not express a complete thought और जिनका कोई complete thought भी नहीं होता. Now let's see the example. Example देखेंगे. I love reading. Let's link it में देखिए example. I love reading. And this is my favorite storybook. See the first belongs. I love reading belongs to the clause. Why? वो भी बाद में डिस्कस करेंगे कि क्लोज क्यों है. फ्रेज का एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज माई फेवरेट स्टोरी बुक. सो अंडरलाइन वर्ड हियर बिलोंग्स टू द फ्रेज. फेवरेट स्टोरी बुक बिलोंग्स टू योर फ्रेज. Now come to the meaning of the definition of the clause here. A clause is a group of words that has both a subject and a matching finite verb. तो क्लोज क्या होते हैं? क्लोज आपके वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और एक मैचिंग फाइनेट वर्ब होता है. जैसे एग्जाम्पल मैं इसमें बताती हूँ आपको, इसी में ही गिवन है. आई लव रीडिंग. अब आ जाइए यहाँ पर. आई लव रीडिंग क्या है? बिलोंग्स टू दी क्लोज. अंडरलाइंड वर्ड्स आपके बिलोंग्स टू दी क्लोज हियर. एंड दिस इज माई फेवरेट स्टोरी बुक बिलोंग्स टू दी phrase. I fell asleep reading it. So I fell asleep आपका क्या है? क्लोज है. और beautiful but funny smelling place phrase है. There was an ogre in front of me. So ये belongs to the clause here. Now come to your chapter. So in your book here given about the phrase and you have to use the phrases to form a sentences. तो चलिए clauses given है, आपको phrase ऐड करने हैं इसमें complete sense के लिए. जैसे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? He is a man of wealth. You can write also. और आप अपनी तरफ से ऐड करके इसमें लिख सकते हैं. But it should be a proper or a complete thought. सेकेंड में I am having a small number भी हो सकता है. क्लियर. थर्ड, द ट्रीज सप्लाई फ्रेश एयर विद कूल ब्रीज. और आप कुछ और भी लिख सकते हैं. ऐसे ही ये जो सेंटेंस हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं बाय एडिंग फ्रेजेस इन योर नोटबुक. नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर गिवन अबाउट द नाउन फ्रेज. सो व्हाट यू मीन बाय द नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज क्या होते हैं आपके? नाउन फ्रेज बिलोंग्स टू द फ्रेज फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. ओके, आपका जो सेंटेंस है उसमें फ्रेज कैसे फंक्शन करेगा? एज अ नाउन के रूप में. बट इफ द फ्रेज मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इट बिलोंग्स टू द एडजेक्टिव फ्रेज. लेकिन अगर आपका फ्रेज सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ और बता रहा है, तो इट बिलोंग्स टू द एडजेक्टिव फ्रेज. लाइक एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. आई लव बुक्स. She wore a yellow shirt. We see that in the first set of sentence, the phrase reading books plays the same role as the noun books. It is therefore a noun phrase. आपका यहाँ पे noun phrase क्या given है? reading book. I love reading books. ठीक है. और she wore a shirt that was a yellow in color. Yellow क्या show कर रहा है? telling about the more noun or the pronoun belongs to the adjective phrase. ओके, नाउ कम टू द एडवर्ब फ्रेज. चलिए एडवर्ब फ्रेज पे आते हैं. एडवर्ब फ्रेज में क्या गिवन है आपका यहाँ पे? व्हाट डू मीन बाय द एडवर्ब फ्रेज? एडवर्ब phrases are a group of words that contain a main verb and other words that modifies it. Together they function as adverbs in a sentence. तो adverb phrase वो group of words होते हैं जिसमें आपका main verb include होता है and other words modify it also. Now come to the exercise here given. Belongs to the adverb phrases. Here you have to complete the sentence. Okay. These books should be mailed at an early date. Now see the answers. Second, at the same time. Third में आपका at this spot होगा. Fourth में in a loud voice. Fifth में in a short while. In a short while.
सिक्स्थ में इन द लॉन्ग रन, सेवेंथ में सून इनफ, एट्थ में विद ग्रेट थोरोनेस, इन नाइन्थ ऑन दिस स्पॉट, टेंथ विद सस्पिशन. Come to the 11. 11 will be in a brave manner, and in 12 for a long time. 13 in a careless way. 14 in front of my eyes. In 15 in the long run. Now come to the next here is telling about the noun clause. So what do you mean by the noun clause? See the definition first. नाउन क्लोज क्या होता है? नाउन क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट गिवन होता है एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. और वो कैसे काम करता है? एक नाउन के रूप में काम करता है आपके सेंटेंस में. नाउ सी द एग्जांपल्स. ग्रैंडमदर टोल्ड अस हाउ शी वेंट टू स्कूल. आई थिंक दैट दे विल अराइव लेट. सो इन दिस सेंटेंस जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट क्लोजेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे टोल्ड है और थिंक है वर्क कर रहे हैं. ठीक है. सो बोथ दीज क्लोजेज फंक्शन एज नाउन्स इन दिस सेंटेंस. नाउ कम टू दी नेक्स्ट पेज. चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं. अंडरलाइन द नाउन क्लोज. हियर यू हैव टू अंडरलाइन द नाउन क्लोज. नाउन क्लोज मैंने आपको बताया था. नाउन क्लोज क्या होते हैं? जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट गिवन होता है. क्लियर? और डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. सो व्हाट विल बी द करेक्ट इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9? क्या होगा? व्हाट ही सैड. ओके, दिस इज योर नाउन क्लोज. टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड, इट्स योर नाउन क्लोज. थर्ड में दैट द वुमेन वॉज नॉट गिल्टी. फोर्थ में जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे आपके नाउन क्लोज से बिलोंग करते हैं. नाउ कम टू द सी पार्ट. हियर दीज सेंटेंस यू हैव टू कंप्लीट विद द नाउन क्लोज. तो चलिए let's see the answer. My sister did not realize on what I have said. Okay, what she said completely took me by surprise. Third, show me where is the house of your friend. Fourth, the best solution when he will come. Fifth, the God is one that remains the most loyal of all. Sixth, I wish to celebrate his birthday with his friend. Now after these come to the let's perfect it. So here you have to complete these sentences by using phrases and also you have to write the kind type of phrases. आपको टाइप भी बताना है और phrases ऐड करके ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. ठीक है. तो चलिए फर्स्ट में आपका पर्पल क्लॉक आएगा. इट बिलोंग्स टू दी नाउन फ्रेज. सेकेंड में विद वाइट स्किन, इट बिलोंग्स टू दी एडजेक्टिव. थर्ड में नेशनल फ्लैग बिलोंग्स टू दी नाउन. Fourth, great speed belongs to the adverb. And fifth, fell asleep in no time belongs to the adverb. Sixth, is a renewed musician belongs to the noun. Seventh, he lives in this building belongs to the adverb. And eighth, your promise belongs to the noun. And ninth, in a red mansion belongs to the adverb. 10th, watching the film belongs to the noun. Now come to the next exercise. Underline the principal clause. आपको principal clause जो underline करने हैं और subordinate को क्या करना है? सर्कल करना है. तो देखिए जितने भी underline किए हुए हैं आपके principal clause हैं और circle subordinate clauses हैं. Now see the next page. This is the answer of also third, fourth, fifth. Now come to the C part here. Identify whether the underlined words are noun phrase or the noun clause. तो आपको फाइंड आउट करना है जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो ये बिलोंग कर रहे हैं नाउन फ्रेजेस से या नाउन क्लोजेस से. सो फर्स्ट आपका नाउन फ्रेज होगा. सेकेंड नाउन क्लोज है. थर्ड नाउन फ्रेज. फोर्थ सेकेंड का ए पार्ट नाउन क्लोज, सेकेंड का बी पार्ट नाउन क्लोज अगेन. थर्ड का ए पार्ट नाउन क्लोज है. थर्ड का बी पार्ट नाउन फ्रेज है. फोर्थ का ए पार्ट नाउन क्लोज. फोर्थ का बी पार्ट नाउन फ्रेज है. फिफ्थ ए नाउन क्लोज, फिफ्थ बी नाउन फ्रेज, सिक्स्थ ए नाउन क्लोज एंड सिक्स्थ बी नाउन फ्रेज. नाउ कम टू द नेक्स्ट. हियर गिवन डी पार्ट. कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज बाय यूजिंग नाउन क्लोज. तो चलिए इस सेंटेंस को आप अपने तरफ से भी
कुछ ऐड करके नाउन क्लोजेस को कुछ और भी ऐड करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड दीज noun and clauses very well. Thank you for watching these. In our next video we will do the other chapters of grammar. So bye bye to all.